بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلاۃ السلام کی ذاتی اختر سے وحلانہ نشست تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یمن کی طرف سے مجھے محبت کی خوشبو آتی ہے کیونکہ وہاں میرا دوست اویس قرنی رہتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے روز حق تعالیٰ 70,000 فرشتے پیدا کریں گے جن کی اشکال خواجہ و کرنی کے جیسی ہوگی، اور ان کے جلوس میں خواجہ صاحب کو وشو کی طرف سے لایا جائے گا۔ ساری کائنات یہ منظر دیکھے گی مگر کوئی شخص پہچان نہیں پائے گا کہ اصل خواجہ کرنی کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح دنیا میں ان کو لوگوں سے چھپائے رکھا، اسی طرح روز قیامت کو بھی ان کو غیر کی نگاہوں سے دور اور محفوظ رکھے گا، کیونکہ حق تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میرے دوست میری قبر کے نیچے رہتے ہیں اور اسی وجہ سے ان کو کوئی پہچان نہیں سکتا۔ خواجہ بے شرمی کو ہوائی چند ایک صحابہ اکرام کے کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام آنے سے پہلے ہی اس دنیا میں تشریف لا چکے تھے۔ بچپن میں ہی آپ والد کی شفقت میں محروم ہو گئے، اس لیے ان کو بچپن میں ہی محنت مزدوری کرنی پڑی۔ آپ لوگوں کے اونٹ اجرت پر چرایا کرتے تھے اور اس اجرت سے اپنا اور اپنی ضعیف اور نابینا والدہ کا پیٹ پالا کرتے تھے۔ ان کے علاوہ جو تھوڑی سی رقم بچ جاتی تھی ان کو لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ آپ کی زندگی کے شب روز اسی طرح گزر رہے تھے کہ یمن تک اسلام کے نام لیوا پیدا ہو گئے۔ جب آپ کو اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خبر ملی تو آپ فوراً اسلام لے آئے۔ آپ کے اندر نور ہدایت کی شمع تو خدا نے پہلے سے ہی روشن کر رکھی تھی۔ اعلان نبوت اور ارشاد اسلام نے اس شمع ہدایت کو ذیلی بخشی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے اور شیدائی بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب اس قرنی کو اسلام کی دولت سے اللہ تعالیٰ نے خود روشن کرایا ہے، اور یہ خدا کی رحمت اور فضل کا اعزاز ہے کہ وہ میرا نادینہ عاشق صادق بن گیا۔ خواجہ نے اس قرنی کو قرب رسول اور دیدار حبیب کا بڑا اشتیاق تھا، مگر آپ کو چشمہ باطنی کے اشارے سے حضرت نے مدینے آنے سے روکا رکھا۔ اس کی دو باوجود تھی کہ ایک تو خواجہ صاحب کی والدہ ضعیف اور بشارت سے محروم تھی، انہیں اکیلا چھوڑنا ناممکن تھا، دوسری ان پر ہر وقت جذبہ طاری رہتا تھا۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواجہ صاحب کو حکم دیا کہ آپ ہر وقت میری چشم باطن کے سامنے ہیں، لہذا آپ مدینے آنے کی بجائے اپنی والدہ کی خدمت میں ہمتن مصروف رہے۔ غزوہ احد میں کفار کے حملے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت شہید ہو گئے۔ تمام مسلمانوں کو اس بات کا بہت صدمہ ہوا، مگر جس عاشق رسول نے اس صدمے کو حقیقی شکل میں محسوس کیا اس کو دنیا حضرت خواجہ اویس قرنی کے نام سے جانتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جب معلوم ہوا کہ میرے آقا سردار دو عالم کے 2 دانت مبارک شہید ہو گئے تو مجھے یہ بالکل معلوم نہ تھا کہ آپ کے کون سے دانت مبارک شہید ہو گئے، مگر آپ کی مواد نے مجھے بے چین کر دیا۔ میں نے پہلے ایک دانت توڑا، پھر مجھے خیال ہوا کہ شاید یہ والا دانت نہ ٹوٹا ہو، پھر دوسرا توڑا، پھر تیسرا توڑا۔ غرض یہ ہے کہ جنون موافق شدت اختیار کرتا گیا، میں دانت توڑتا چلا گیا تاکہ سارے دانت توڑ ڈالے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کے اس عاشق کے دلگیر کی یہ ادا بڑی پسند آئی اور اس کے لیے کیلے کا درخت پیدا کیا، کیونکہ ٹوٹے دانتوں کے ساتھ سوائے نرم کیلے کی اور کوئی چیز کھانا ممکن نہیں تھی۔ صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وقت وصال پوچھا کہ آپ کا سرکہ ہم کس کو دیں؟ آپ نے فرمایا کہ سکروی کو۔ اس مقصد کی برابری کے لیے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی مرتضیٰ کوفہ تشریف لے گئے اور جمعہ نماز کے خطبے میں کہا، مسجد میں نظر سے تعلق رکھنے والے جتنے لوگ ہیں سب کھڑے ہو جائیں۔ چنانچہ اہل نظر کھڑے ہو گئے۔ ان سے پوچھا گیا کہ شہر میں کوئی اویس قرنی نام کا شخص ہے؟ سب نے جواب دیا کہ ہم اویس قرنی سے بالکل نہیں ہیں، ہاں البتہ ایک دیوانہ ہے جو لوگوں سے بیزار ہو چکا ہے اور ہر وقت ویرانوں میں رہتا ہے اور آبادی کی طرف بالکل نہیں آتا۔ حضرت عمر اور حضرت علی نے کہا کہ وہ کہاں ہیں، ہمیں اس سے ملواؤ۔ عرض کی گئی کہ وہ وادی ارنا میں اونٹ چراتا ہے اور رات کو روکھی سوکھی کھا کر سوتا رہتا ہے۔
किसी से बात नहीं करता, वो खाना हम जो लोग खाते हैं उसको पसंद नहीं करता, लोगों को खुश देखता तो रोता, जब लोगों को रोते हुए देखता तो वो खुश होता। जब हजरत उमर और हजरत अली वादी में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ख्वाजा ने नमाज अदा कर रहे हैं और उनके ऊँटों को फरिश्ते चरा रहे हैं। जब ख्वाजा अवैस नमाज से फारुग हुए तो हजरत उमर ने आपको अस्सलाम वालेकुम कहा, जवाब मिला वालेकुम सलाम। हजरत अली ने आपसे नाम पूछा, जवाब दिया कि मेरा नाम अल्लाह का बंदा है। हजरत उमर ने कहा कि अल्लाह के बंदे तो हम सब हैं, आप अपना खास नाम बताइए। ख्वाजा साहब बोले कि मेरा नाम अवैस है। तालिक हजरत उमर ने उनका हाथ पकड़कर वो निशान देखा जिसके मुतालिक हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाया था कि वो निशान अवैस शिनाख्त की अलामत होगा। हजरत उमर ने जब वो निशान अलामत ख्वाजा अवैस के हाथ पर देखा तो उनके हाथ को बोसा दिया और कहा कि अवैस करनी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सलाम भेजा है और साथ ही यह मक्का भी इनायत फरमाया है और वसीयत फरमाई है कि आप उम्मत मुहम्मदिया की बख्शिश के लिए दुआ करें। ख्वाजा अवैस करनी ने फरमाया कि ए उमर और अली, आप लोग हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफीक के खास हैं और मुझसे अव्वल हैं, दुआ तो आप लोग करें क्योंकि आपका मर्तबा खुदा के दरबार में बहुत बुलंद है। हजरत उमर और हजरत अली एक जमा होकर बोले, हम तो दुआ करते हैं मगर आप जब वसीयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ फरमाइए। ख्वाजा अवैस करनी ने फिर कहा कि ए उमर और अली, आप गौर कर लीजिए, शायद मैं वो ना हूँ, वो कोई और हो जिसका जिक्र महबूब खुदा ने फरमाया हो। हजरत उमर फारूक ने फरमाया कि अवैस करनी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके मुतालिक दो निशान बताए थे और वो दोनों निशान आपके पास मौजूद हैं। यह हमारी पहचान, शनाख्त और पहुँच बिल्कुल दुरुस्त है। ख्वाजा अवैस हजरत उमर और हजरत अली से कहा कि लाइए वो सिरका मुझे अता कीजिए ताकि मैं हस्ब हुक्म अता दुआ करूँ। जब उनको सिरका दिया गया तो हजरत उमर और हजरत अली ने कुछ फासले पर चले गए और ज़मीन पर सदा होकर बारगाह इलाही में अर्ज की खुदावंद आलम, मैं उस वक्त तक यह सिरका ना पहनूंगा जब तक तू सरकार दो आलम की सारी उम्मत को मेरी सिफारिश पर बख्शीश ना दे देगा, क्योंकि पैगम्बर इस्लाम ने यही मर्तबा मुझे अता किया है और फारूक और मुतरजा ने मुझ तक पहुँचने के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं। अब तेरा काम है, तू मेरी दुआ सुन ले और कबूल कर ले। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अवैस, हमने तेरी दुआ बरकत की से चंद लोगों को तेरी सिफारिश पर बख्श दिया है। आपने फिर अर्ज़ की, या अल्लाह ताला, जब तक तू सबको नहीं बख्शेगा मैं ये सिरका नहीं पहनूंगा। निदाई मैंने कई हज़ार फर्श बख्श दिए। अर्ज़ की, मौला, मैं सबको बख्श जाना चाहता हूँ। अभी यह कह सुन चल रही थी कि हजरत उमर और हजरत अली आपके करीब चले गए। आप दोनों को ख्वाजा अवैस करनी ने कहा कि आप लोग यहाँ क्यों आ गए हैं? मेरा और खुदा का सिलसिला जारी था। आप लोगों की आमद ना होती तो मैंने उस वक्त तक यह सिरका नहीं पहनना था जब तक अपने आका की सारी उम्मत को ना बख्श लेता, और मुझे पूरा यकीन था कि हक ताला ने मेरी सिफारिश पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की हर फर्द को बख्श देना था। मशहूर सहाबी हज़रत रबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि जब कोई ख्वाजा हज करने की ज़ियारत को गया तो मैंने उन्हें फ़र्ज़ की नमाज में मशगूल पाया। नमाज से फारुग हुए तो अपने दुरूद में मशरूफ़ हो गए, यहाँ तक कि ज़ोहर का वक्त हो गया। फिर यह देखने के बाद दीगर तमाम नमाजों और ज़िक्र इलाही में ऐसे मगन हुए कि सारी रात गुजर गई। मैं उनका बगैर मुशायरा करता रहा। इस तरह 3 दिन गुजर गए। मैंने देखा और हैरान रह गया कि इन 3 दिन और रातों में हजरत ने ना कुछ खाया ना पिया, बल्कि इबादत में मशगूल रही और लम्हा भर के लिए भी आराम नहीं किया। चौथी रात आप थोड़ी देर के लिए सोई और कुछ खाना भी खाया। फिर इस्तिग़फ़ार करने लगी कि या इलाही, मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ, मैं नींद और भूख के हलवे में मुतालिब हो गया। हर दिन रब्बी कहते हैं कि ख्वाजा अवैस करनी ने रातों की तकसीम की हुई थी। एक रात में सजदा करते तो पूरी रात सजदे में ही गुजार देते और अगर रुकू करते तो शब भर रुकू ही हालत में रहते। किसी रात को क़याम में ही बसर करते। गरज ये है कि हर रात को दूसरी रात की तरह जिंदा रखते थे। ख्वाजा अवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हजरत उमर ने पैगाम भेजा कि अगर आपकी इजाज़त हो तो कोफा के गवर्नर को लिखो कि वो आपका खास ख्याल रखे। ख्वाजा साहब ने जवाब दिया कि मैं खुसूसियत के साथ ज़िंदगी बसर करने में सख्त खिलाफ हूँ। मेरा हाथ हजरत रवा के हाथ में है। मुझे तो बस याद इलाही
इलाही से गरज है वो मैं कर रहा हूँ और कोई चीज़ दरकार नहीं। उसके बाद आपने कुफा भी छोड़ दिया और किसी और इलाके में निकल गए जहाँ आपको कोई तलाश ना कर सकी। एक दफ़ा का वाक़या है कि हज़रत अवैस करनी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार का शौक इस कदर पैदा हुआ कि उन्होंने मदीना आने का इरादा किया। आप इधर उन्होंने इरादा किया, उधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी गज़वा में शिरकत करने के लिए मदीने से बाहर जाना पड़ा। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा से फरमाया कि मेरे जाने के बाद शायद कोई मेहमान आए, अगर वह यहाँ आए तो उसकी खूब खातिर मदद की जाए और हर तरह के ख्याल रखे जाए, क्योंकि वो बड़ा ही पारसा इंसान है और मेरे आने तक उसको रोकने की कोशिश की जाए। अगर वो ना रुके तो चाहे तो मजबूर ना किया जाए, मगर उसकी शक्ल सूरत याद रखी जाए। ये हिदायत देखकर रिसालत इमाम खुदा तो गज़वा में शिरकत के लिए रवाना हो गए। बाद में ख्वाजा करनी मदीना तशरीफ़ लाए। उनको जब पता चला कि हुजूर सारवे कायनात की इस वक्त मदीने में नहीं है तो उन्होंने उसी वक्त वापसी का फैसला किया। उनको रोकने के लिए बड़ी कोशिश की गई, मगर वो ना रुकी और ना ही किसी किस्म की खातिर करवाई, बस वापस लौट गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना वापस तशरीफ़ लाए तो आते ही उन्होंने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से सवाल किया कि यहाँ कोई मेहमान आया था। उम्मुल मोमिनीन ने अर्ज़ की कि अल्लाह के रसूल, एक शख्स जो कि यमन से आया था, उसकी शक्ल सूरत चारवाओं के जैसी थी। आपको ना पाकर वो एक लम्हा भी यहाँ नहीं ठहरा और चला गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि आयशा पता है वो कौन था? अर्ज़ की कि हुजूर मैं बिल्कुल नहीं जानती। फरमाया कि वो अवैस करनी था जो मेरे दीदार के लिए यहाँ आया था और दीदार की हसरत दिल में ही लेकर वापस चला गया, और वो ठहरा भी नहीं सकता क्योंकि उसकी एक वालिदा है जो बूढ़ी है और आंखों से मजबूर है और उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए इसको हर हाल में वापस जाना था। और यह वो शख्स है जो कि खुदा और उसके रसूल का सच्चा चाहने वाला है, जिसको सिर्फ जिक्र ए इलाही से गरज है और वो किसी चीज़ से ना महरूम है ना मुतासिर है। अवैस करनी ने मेरा आशिक है और अल्लाह से मोहब्बत करता है। हज़रत आयशा हज़रत हरम बिन हयान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक बार ख्वाजा अवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुलाकात हुई। वो अपनी मुलाकात कुछ इस तरह बयान करते हैं। ख्वाजा अवैस करनी कोफा में मुकीम थे। मैंने आपकी तारीफ सुनी, मुलाकात का शौक गालिब हुआ और मैं उनकी ज़ियारत के लिए कोफा तशरीफ़ लाया। लोगों ने बताया कि वो दरिया ए फरात पर मिलेगी। फरात के किनारे पर पहुंचा तो देखा कि एक शख्स तन्हा बैठा दोपहर के वक्त वुज़ू कर रहा था और कपड़े धो रहा था। मैं अवैस करनी के औसाफ सुन चुका था, इसलिए फ़ौरन ही पहचान गया। उनका जिस्म फरमाया और रंग गंदुमी था। जिस्म सिर मुंडा हुआ था और दाढ़ी घनी थी। बदन पर बहुत बाल थे और चेहरा बहुत बड़ा और मुहित था। सुर्फ का पजामा पहने हुए थे और सौफ की एक चादर जिन्स पर थी। मैंने करीब पहुंचकर सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया और मेरी तरफ देखकर कहा कि अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। फिर मैंने मुसाफा के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उन्होंने मुसाफा करने से गुरेज किया और अपने पहले अल्फाज दोहराए कि अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। मुझे उनकी हालत पर बड़ा तरस आया और मेरी आंखों से आंसू बहने लगी। जब मैंने रिस्क भरे लहजे में कहा कि अवैस, खुदा तुम पर रहमत करे और तुम्हारी मगफिरत फरमाए, तो वो भी रोने लगी और मुझसे मुखातिब होकर फरमाया कि हरम बिन हयान, खुदा तुम पर रहम करे। मेरे भाई, तुम्हारा क्या हाल है? तुम्हें मेरा नाम पता किसने बताया? मैंने अर्ज किया कि खुदा ने, मगर अवैस यह तो बताओ कि तुम्हें मेरा और मेरे बाप का नाम कैसे मालूम हुआ? इससे पहले ना मैंने तुम्हें देखा है ना तुमने मुझे। हज़रत अवैस ने जवाब दिया कि तुम्हारा नाम मुझे उसी ने बताया है जिसकी इल्म खबर से कोई चीज़ बाहर नहीं। मेरी रूह ने तुम्हारी रूह की तरफ तवज्जह की और मेरी रूह ने तुम्हारी रूह को पहचान लिया। मोमिन की रूह एक दूसरे को पहचान लेती है। मैंने अर्ज़ की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई हदीस मुबारक सुनाइए
ताकि मैं उसे याद कर लूँ। हज़रत अवैस करनी ने फरमाया कि मैंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोहबत हासिल नहीं की, अलबत्ता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम को देखने की शहादत नसीब हुई है, और तुम लोगों की तरह उनकी ज़ुबान से मैंने भी हुजूर की आहट सुनी है। लेकिन मैं अपने ऊपर यह दरवाज़ा खोलकर मुकद्दस मुफ्ती और काजी कहलाना पसंद नहीं करता। मुझे खुद अपने नफ्स के बहुत से काम हैं। यह कहकर वह मेरा हाथ पकड़कर रोने लगी। मैंने दरख्वास्त की कि फिर कुरान हकीम की कुछ आयत सुना दीजिए। मेरे दिल में आपकी ज़ुबान से कुरान सुनने की बेहद इश्तियाक है। मेरी आपसे मोहब्बत और अकीदत खुदा के लिए है। मेरे लिए दुआ फरमाइए और मुझसे वसीयत कीजिए। मेरी दरख्वास्त सुनकर अवीज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़कर और चीख मारकर रोने लगी। फिर फरमाया, मेरे रब का जिक्र बुलंद है, उसका कौल सबसे अच्छा है, उसका कलाम सबसे अच्छा है। यह कहकर उन्होंने इनायत की तिलावत की। हामीन वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल मुबारकतिन कुन्ना मुनज़्ज़रीन वल अज़ीज़ुल रहीम तक पढ़कर चीख मारी और बेहोश हो गए। होश में आए तो फरमाया, हरम बिन हयान तुम्हारा बाप मर गया है, अनक़रीब तुमको भी मरना है। क्या खबर जन्नत में जाए या दोज़ख में। इब्न हयान आमदम फोत हो गए, हवा फोत हो गए, इब्न हयान और इब्राहिम खलीलुल्लाह फोत हो गए, इब्न हयान मूसा और दाऊद फोत हो गए, इब्न हयान मोहम्मद रसूलुल्लाह फोत हो गए, अबू बकर सिद्दीक फोत हो गए, इब्न हयान मेरे भाई उमर बिन खत्ताब फोत हो गए। और यह कहकर उन्होंने मग़फ़िरत की दुआ की। उस वक्त तक हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु जिंदा थे, इसलिए मैंने कहा कि खुदा आप पर रहम करे। उमर इख्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो अभी फोत नहीं हुए। फरमाया, हाँ, जो कुछ मैंने कहा है, क्या अगर तुम इसको समझो तो खुद जान जाओगे कि मैं और तुम भी मुर्दा हो। होने वाली बात हो चुकी है। उसके बाद हज़रत अवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा। फिर कुछ दुआएं पढ़ी और फरमाया कि हरम बिन हयान, मेरी वसीयत यह है कि किताबुल्लाह को मजबूती से पढ़ो, अहलुल्लाह की सोहबत इख्तियार करो और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमेशा दुरूद व सलाम भेजते रहो। मैंने अपनी और तुम्हारी मौत की खबर दे दी। आइंदा किसी के साथ ए मौत गाफिल ना रहना। वापस जाकर अपने कौम को बेनसीहत करना और डरना। खबरदार जमात का साथ कभी ना छोड़ना, वरना बेदीन हो जाओगी और क़यामत के आतिश दोज़ख का ईंधन बनना पड़ेगा। फिर उन्होंने दुआ की कि इलाही, यह शख्स कहता है कि इसको तेरे लिए मुझसे मोहब्बत है और इसने तेरे लिए मुझसे मुलाकात की, इसलिए खुदा मुझसे तौफीक दे कि मैं जन्नत में इसका चेहरा पहचान जाऊं और दरुल इस्लाम में मेरी इसकी मुलाकात हो। वो दुनिया में जहाँ कहीं भी है, उसको अपने ही ईमान में रखना, इसको गुनाहत अता कर इसको अपनी नेमतों का शुक्रगुज़ार बना और उसको जायज़ाज खैर दे। दुआ के बाद गनी ने मुझसे फरमाया कि ए हरम बिन हयान, अब मैं तुझे अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। आज के बाद मैं तुमको नहीं देखूंगा। मुझे शोहरत पसंद नहीं है, बोझा खिलाफत ही मेरा रफीक है। आइंदा मुझे तलाश करने की कोशिश मत करना, मुझे ढूंढने में तुम कामयाब नहीं हो सकोगी। मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा और तुम मुझे याद रखना। मेरे लिए दुआएं खैर करते रहना। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। यह कहकर वो एक सिर तोड़ को चले गए। उसके बाद मैंने उनको बहुत तलाश किया, लेकिन किसी से उनके बारे में कुछ मालूम नहीं हो सका। अलबत्ता कोई हफ्ता ऐसा नहीं जाता जिसमें उनको एक या दो बार ख्वाब में न देखूं। अल्लाह ताला अवैस करनी पर रहमत नाजिल फरमाए और उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन।